हाय सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस पार्ट वाज लेफ्ट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मिसलेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इससे पहले मिसलेनियस की पहली फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज वी हैव डन द आइडेंटिटीज एज वेल। इस वीडियो के बाद आई एम गोइंग टू डू सेट्स का एग्जाम्पलर, रिलेशन फंक्शन का एग्जाम्पलर एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पलर, क्योंकि हम तीन चैप्टर कर चुके होंगे। ओके, so let's start the miscellaneous examples. Miscellaneous examples. If you don't have the book in front of you, that's also fine. I'm going to write the questions here. I prefer that students should write the question. बच्चों को आंसर रटे होते हैं, क्वेश्चन पता नहीं है क्वेश्चन किसका है। ठीक है, उल्टा होना चाहिए। So the first question from the book. This is the miscellaneous examples. We are not skipping examples. Sin x is 3 by 5. If sin x is 3 by 5, cos y is minus 12 by 13, where x and y, where x and y both lie in second quadrant. This is the question. So we have to find what? They're asking us to find sine x plus y. Okay. First of all, we should know the identities also, the formulas that I've taught you. That sine x plus y. What is sine x plus y? Let's see. So sine x plus y, if you remember, in the previous session we have done that. So sine x cos y plus cos x sine y. If you observe carefully, we already know sin x, right? We already know cos y, but there is one problem that we don't know. We don't know cos x and sin y. So we're gonna figure out that first. So let's see. If I have sin x, I can figure out my cos x. How come? Because cos square x is equal to 1 minus sin square x. So if I plug in the value 1 minus sin square x, that is 3 by 5 ka square. So it will be 1 minus 9 by 25, which is, if I take the LCM, 25 minus 9, which is 16 by 25. So cos square is this. So cos x must be square root of this and positive negative, because two solutions are possible, 4 and 5. Now the problem is we have to see second quadrant. In the second quadrant, if you remember, only sine and cosec is positive. That's why this guy must be negative. So we're going to take cos x as negative 4 upon 5. Now, let's move on to the next part, which is sine y. We also need sine y. If we know cos x now, we can figure out sine y as well using this cos y. If we have cos y as minus 12 by 13, so what will be my sine y? Sine square y must be 1 minus cos square y. And sine square y is equal to 1 minus square of this, which is 144 over 169. अगर आप 169 में इसको माइनस कर लेंगे, you will get 25 over 169, right? So sin square y अगर ये है, तो मेरा साइन y क्या आएगा? साइन y विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, विच इज प्लस माइनस 5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो वी आर गोना टेक द पॉजिटिव गाय। So this is the answer for sin y, and this is the answer for cos x. Now these are the values that we are supposed to plug in. Sin x cos y the question में ही given है, so let's plug in those values. Let's figure out our answer. So sin x is 3 upon 5, cos y is minus 12 upon 13, plus cos x is minus 4 upon 5, and then the sine y is nothing but 5 upon 13, right? 5 upon 13. Now, if you'll see, this is minus 36 over 65, and this is minus 20 over what? Over 65. So if I add them up, we will get 65, and we get the same answer because this solved examples. You can check also. So I'm checking the NCRT, is the same answer, minus 56 over 165. So revising what we did, हमें पहले अगर sin x given है, हमें cos x निकालना पड़ेगा because the formula says so, and cos y given है तो sin y निकालना पड़ेगा because the formula says so. So this is our answer for the first miscellaneous example. Good one. Let's move on to the next one. The next example, we are going to do all the examples and all the miscellaneous questions in this session. Okay. So we have to prove, this is a proving question. To prove what? Cos 2x, cos x by 2 minus cos 3x, cos 9x by 2. We have to prove that this is equal to sin 5x, sin 5x by 2. अब पहले इससे पहले मैं ये प्रूव करूं, आई होप आपको फॉर्मूलाज याद हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे उस पीडीएफ को रख देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियोस में पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में आई विल अपलोड। ओके, सो दिस फॉर्मूला पीडीएफ विच आई हैव रिटन ऑन माय ओन। सो ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं हम। कौन से? देखिए, कॉस को साइन में बनाना है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे ये वाला है, इससे इधर जाना है, वो दिख रहा है। लेकिन देयर इज वन प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट
कि यहाँ पे टू होता है, राइट, यहाँ पे टू होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें मुझे एक पहले स्टेप करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई विल जस्ट टेल यू इन अ मिनट। ओके, सो दिस इज माय गाय, माइनस यहाँ पे भी टू कॉस 3x कॉस 9x/2। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप करने वाला हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी डन है, लेट्स से कि आपको वो सामने आता है। अगर cos 2x है, इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ, cos 2x प्लस x/2, और फिर प्लस cos, आई एम लुकिंग फ्रॉम द फॉर्मूला बाय द वे, cos 2x माइनस x/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस, इसको लिखता हूँ cos 3x प्लस 9x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3x माइनस 9x/2। अगर आपको ये बिलीव नहीं होता कैसे आया है, अगर आप देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को एक्चुअली, इस वाले फॉर्मूले थोड़ा का अटपटा करके कर दिया है, मतलब सीधा सीधा नहीं करा। देखो, अगर मैं cos a+b लेता हूँ, क्योंकि ये डिराइव हुए हैं ऐसे करके, cos 2x प्लस x/2, cos 2x माइनस x/2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यही चीज है, देखो a और b जो भी है, a में रही होगी, b ए में होगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखो ये कटता है ना, और मेरे पास क्या आता है, 2 cos a cos b, और आपने a को क्या ले रखा है, ये ले रखा है, और b को ये ले रखा है। तो cos a+b और cos a-b को जब आप ऐड करेंगे, 2 cos a cos b आएगा, और वही है यहाँ पे। तो आपने इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कन्वर्जन जस्ट लाइक एनसीईआरटी, वी आर डूइंग लाइक दिस मैनर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या करेंगे यहाँ पे, cos 2x plus x/2 is what, cos 5x/2, एंड cos 2x minus x/2 is cos 3x/2। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, और ये ब्रैकेट अभी चल रहा है, cos 3x प्लस 9x, तो अगर cos 3x 6x 15x/2, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय द वे यहाँ पे माइनस था, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा ऐसे, और ये साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6x माइनस दिस विल माइनस 3x/2। और बाय द वे कॉस ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, तो आप इसको यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, देयर सम प्रॉब्लम, रुको, हमने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस जब माइनस, और ठीक है बिल्कुल। अब देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, सो हाफ कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। अब देखो, अब यहाँ पे, अब ये वाला फॉर्म लग सकता है, ये जो हम कर रहे थे, ये वाला चीज, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे सम और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दे रखा था, तो आपको इन दोनों को ऐड करके ऐसे बनाना पड़ा। अब यहाँ पे हाफ है, और ये साइन में बनेगा, देखो क्या बनेगा, -2 साइन, दोनों को ऐड करके बाई 2। तो अगर मैं ऐड करता हूँ, तो 20x/2 एंड 20x/4 विच इज 5x। ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ मैं, और दोनों को माइनस करता हूँ, तो C-D, तो ये हो जाएगा 10x/4, राइट। 10x/4 होगा, तो ये हो जाएगा 5 -5x/2। एंड बाय द वे, माइनस साइन एक्स जो होता है, साइन बाहर आ जाता है, क्योंकि माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स, सो दिस विल कम आउट, सो माइनस माइनस प्लस बना देगा, 2 sin 5x, और साइन 5x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट साइन 5x एंड साइन 5x/2। सो दिस इज गोइंग टू बी माई RHS, इफ यू ऑब्जर्व, यस। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर रहना, अभी तक हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहे थे, इसको हमें ऐसे बनाना है, cos a+b और प्लस कॉस a माइनस बी वाले को जब हम ऐड करते हैं, तो 2 cos a cos b आता है। ठीक है, तो उसका हमने फायदा उठाया, उसका यूज किया, यहाँ पे भी हमने वही किया। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट लगाना पड़ा साइन चेंज के लिए, कट जाएगा, फिर सीधा cos c माइनस cos d वाला फॉर्म लगाया, एंड वी गॉट द आंसर इज RHS। ठीक है, सो दिस इज आवर मिसलेनियस सेकंड एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन says what, let me see, 10 10 पाई/8 की वैल्यू लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई/8। अब देखो, 10 पाई/8 अगर मैं देखूं, 180/8 करें, 24290, 22 245, तो 22.5 समथिंग, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी है, 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें ऐसे नहीं पता, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 10, ये जो हमारा है, एक्स जो है 10 पाई/8 है हमारा, अच्छा एक्स हमारा पाई/8 है, सॉरी, एक्स हमारा पाई/8 है। अगर मैं डबल करता हूँ,
मान लेते हैं डबल करता हूँ, 2x करता हूँ, तो क्या होगा? 2 × π/8 विच इज π/4। सर ये क्यों कर रहे हो, अभी सामने आएगा। ये है। अब tan 2x का फॉर्मूला हमें पता है। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x, 2 tan x, 1 - tan² x, राइट, फ्रॉम द शीट, फॉर्मूला शीट। ओके, और फ्रॉम प्रैक्टिस। नाउ tan 2x, अगर मैं tan 2x की बात करूं बेटा जी, tan 2x का मतलब क्या हो गया? 10 π/4, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे 10x क्या होगा? 10x क्या है? 10 π/8, जो हमें वैल्यू चाहिए। सो वी आर क्लेवरली डूइंग दिस। 10² π/10 π/4 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। इसको आप 2 10 π/8, अब एक एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है 10 π/8 में। कैसे बनेगी देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - tan² π/8 इसको टू 2 10 π/8। और यहाँ पे, अब यहाँ पे सब कुछ को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10, सब कुछ को मैं राइट हैंड साइड ले आ रहा हूँ, ये +2 10 π/8 -1। अगर आपको ऐसे π/8 से प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट ऐसे x², x नहीं y ले लो ना, क्योंकि x तो पहले यूज कर लिया, y² +2y - 1। आपको क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, लेट कर लो, y मेरा 10 π/8 है, इससे इजी लगेगा, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे? मिल्टन स्प्लिटिंग 10², y, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो y, अच्छा इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं y + y करता हूँ तो -y नहीं बन पाएगा ना। तो इंस्टेड हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। -b प्लस माइनस रूट b² -4ac, 4ac, ये हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। क्या होता है फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनांट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये मिल्टन स्प्लिटिंग देख रहा था, नहीं बन रहा है मिल्टन स्प्लिटिंग से। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मिल्टन स्प्लिटिंग आप देखेंगे तो उसमें y + y से बन सकता है 2y, लेकिन 1 × -1 तो -1 होता है, और 1 × 1 होता है 1, इसलिए नहीं बन रहा मिल्टन स्प्लिट। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा अपना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8/2। सो -2 प्लस माइनस √8, राइट। √8 मतलब कि 4 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2 कह सकते हैं 2। अब ये 2 जो है कॉमन कट जाएगा, प्लस माइनस √2। अब ये बना, तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास? y की वैल्यू ये आई। अब y जो है 10 π/8 है, बाय द वे, एक नेगेटिव आई है और एक पॉजिटिव आई है। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला होता है। 10 π/8 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। तो आप ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो y की वैल्यू 10 π/8 की वैल्यू ली जाएगी। इसको सीधा लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, √2 - 1। देखें जरा एनसीईआरटी में कितना, √2 - 1 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है, एक बार रिपीट कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है कि x लेना है पहले π/8 को, 2x बना देना है, तो π/4 हो जाएगा। tan 2x का फॉर्मूला हमें पता है, हमने प्लग इन किया, एंड 10 π/8 में क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा वो, मिल्टन स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा था, हमने देखा सॉल्व करके, नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 10 π/8। एंड दिस इज आवर आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि 10x जो है 3/4 है, राइट। तो आपको क्या निकालना है? एक सेकेंड, मिस प्रिंट है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम भाई? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक फ्रॉम अ डिफरेंट बुक। मेरे में मिस प्रिंट है बेटा जी, ये रहा। ठीक है, ये पूरा है। 10x जो है 3/4 है, नहीं ये न्यू बुक में भी है ये। ठीक है, कभी कहोगे डिलीटेड है सर इसलिए मिस नहीं, उसमें ये वाला पार्ट मिस प्रिंट था मेरा। तो कहता है फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ sin x/2, उसके बाद क्या है cos x/2, एंड देन वी हैव व्हाट, 10x/2, राइट, 10x/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड। एनसीईआरटी वाले तरीके से भी कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ बेटा जी। देखो, अगर पहले ये बताओ, अगर x मेरा सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर मेरा x पाई से 3π/2 के बिटवीन है, तो अगर मैं इधर हाफ करता हूँ तो इधर भी हाफ हो जाएगा, π/2 से 3π/4 के बीच में हो जाएगा। π/2 से 3π/4 का मतलब 3 × π/4 होता है 45 डिग्री, है ना। तो 15, 4 × 12, 125 डिग्री, 90 से 125 डिग्री के बीच में, मतलब इधर कहीं। ठीक है, 90 इधर हुआ, 125 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया अब हमारा ये। ठीक है,
चलो अब देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट तो पता होना चाहिए 10x, क्योंकि हम x/2 वाले सारे निकाल रहे हैं, ठीक है। बाय द वे दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, बहुत आता है एग्जाम में। अभी तक जो भी क्वेश्चन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखो 10x है, बाय द वे 10 2, अगर मैं 10 2x की तरह इसको ट्रीट करूं तो इसको आई कैन राइट एज 2 10x/2, 1 - 10² x/2, राइट। सो 10x will be, what is the value of 10x? 3/4। 2 10x/2 का मतलब हो गया, यहाँ पे हम 2 10x/2 निकालेंगे, और यहाँ पे 1 - 10² x/2। सो दिस विल बी व्हाट, 3/4, 2 10x/2। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया बेटा जी। कैसे क्वाड्रेटिक बन गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3, इसको मैं y ले रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1 - 10² x/2, है ना। तो 1 - y² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8y। सो इधर 3 - 3y², 8y। अब सब कुछ को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y² प्लस 8y -3, राइट। सो अब इसका हम देखें, इसका मिल्टन स्प्लिटिंग हो रहा है क्या, 9, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3y² प्लस 9y -1y, तो इसमें हो रहा है मिल्टन स्प्लिटिंग। सो 9 1 जा 9 - 1 -9, 3 3 -9, बिल्कुल ठीक है। तो 3y कॉमन निकाला, y+3, -1 कॉमन निकला, y+3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 0, 3y - 1 एंड y+3। तो अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू एक बार आ रही है 1/3, और एक बार आ रही है -3। बाय द वे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, आई होप कि यही आंसर है, हाँ यही है। तो y की वैल्यू -3 है, y ये था, तो 10x/2 हमारा क्या हो जाएगा, -3। ये नहीं होगा क्योंकि y ये वैल्यू नहीं ले सकता सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा 10x/2 आ गया, हमें साइन और साइन x/2 कॉस x/2 भी निकालना है। क्या आपको पता है sec²x क्या होता है, 1 + tan²x होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा। तो sec²x/2 इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, दिस विल बी 10। सो अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस, प्लस माइनस। बाय द वे सेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है बस। तो ये नेगेटिव वाला लिया जाएगा। और बाय द वे कॉस इसका उल्टा होता है, तो cos x/2 विल बी 1/, -1, ये हो जाएगा। cos x/2 की वैल्यू लेट मी चेक, सेम आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है भाई। तो उसका तरीके से कर लो, ऐसे कर लो, दोनों सही है। अब sin x/2 निकालना हो तो हलवा है। sin x/2 cos x/2 क्या होता है, 10x/2। सो 10x/2, ये अगर आपको दो नोन है तो बाकी नोन हो जाएगा, दो एक अननोन निकल आएगा। sin x/2 निकालना है, दिस इज बाय व्हाट, दिस इज -1/√10, एंड दिस इज माय -3। क्रॉस मल्टीप्लाई these guys and we'll get this is minus से minus positive, 3 into this is 3√10, and this is by sin x/2, which is absolutely correct। सो हमारे ये तीनों है, हमने कैसे किया, पहले हमने tan निकाल लिया, क्योंकि मैंने सीधा सीधा देखा 10x दे रखा है तो उसको 2 10x की तरह ऐसे बना के, तो 10x को हम 2 10x/2 ये वाले फॉर्मूले से कर सकते थे। y की वैल्यू आ गई, y को हमने 10x/2 लिया था, cos x आ गया ये वाले आइडेंटिटी से 10th क्लास वाले, और sin x/2 आ गया। सो दैट वाज एग्जांपल 21। लेट्स सी देयर आर मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल इज देयर, तो ये भी कर लेते हैं बेटा जी। कहता है प्रूव दैट cos² x प्लस cos²x + π/3 प्लस cos²x - π/3 is equal to 3/2। We have to prove this. So let's see if you remember this guy. This popular guy बहुत यूज होता है, 1 - 1 + cos 2x/2 is equal to cos²x। ये एक आइडेंटिटी डबल एंगल फॉर्मूलाज मैंने आपको कराया था पिछली वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता देख लीजिए। और अगर साइन का होता है तो ये ऐसे होता है, sin²x, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos 2x/2 इस, और इसको कैसे लिखता हूँ, वो सॉरी प्लस, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाले में प्लस होता है, 1 + cos ट्वाइस ऑफ दिस गाय बाई 2, एंड देन 1 + cos ट्वाइस x - π/3/2। हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, 3/2 के बराबर लानी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब इसको हम, 1 + cos 2x को तो कुछ करना नहीं है, बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + cos 2x + 2π/3, है ना, बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 1 + cos, ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x - 2π/3।
आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। इसको ऐसे रहने दीजिए, बाई टू। देखते हैं कॉस ए माइनस बी क्या होता है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं सब कुछ एक ही डिनोमिनेटर में रख देता हूँ, क्योंकि नीचे तो टू है ही। ठीक है, अभी रख देता हूँ। फिर यहाँ पे प्लस वन कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाता है आइडेंटिटी में, फिर रिमेंबर, प्लस साइन ए साइन बी एंड एवरीथिंग अपॉन, अरे यहाँ पे टू टू ही आएगा भाई, थ्री कैसे आ गया, टू ही आएगा। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे सिनेरियो बन रहे हैं। देखो ध्यान से ही कैंसिल हो रहा है, सेम चीज है ना। यस। सो वन प्लस वन हो गया थ्री। क्या इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 3/2 आपको चाहिए, मतलब कि रिमेनिंग स्टफ जो है कैंसिल होने वाला है। कॉस टू एक्स, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, ट्वाइस कॉस टू एक्स कॉस टू पाई बाई थ्री अपॉन टू। अब देखते हैं ये क्या होता है। कॉस टू पाई बाई थ्री, कॉस टू पाई बाई थ्री को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉस पाई बाई थ्री। और कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है अगर आपको याद हो, हाफ होता है। सो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री, तो थ्री प्लस कॉस टू एक्स प्लस ट्वाइस कॉस टू एक्स, और ये आ जाएगा माइनस हाफ अपॉन टू चल रहा है। इससे ही कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज इसको कैंसिल कर देगी एंड दिस विल बी योर आंसर, बोला RHS, हेंस प्रूव। So I think these were the examples only. Yes. So in this video, we are going to keep it until here only, and then in the next video we are going to do the miscellaneous exercise. तो आज के लिए इतना रखते हैं। Thank you.